إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. معزز حاضرین جمعہ اور سامعین اکرام، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی اور عبادت و بندگی لائق اور مناسب ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو خالق کائنات ہے، مالک ارض و سما ہے اور سارے جہان کا رب ہے، اور درود السلام نازل ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، خاص طور پر آخری رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود السلام نازل ہو. اللہم صلی علیہ وبارک وسلم. اللہ رب العالمین نے انسانوں کو پیدا کیا ہے تو انسانوں کی طبیعت میں، اس دنیا کی زندگی میں بہت ساری چیزوں کی خواہشات، چاہت، رغبت اللہ رب العالمین نے فطری طور پر ڈال دی، اور خواہشات یا چاہت اور رغبت کی اللہ رب العالمین نے حد بندی بھی کی ہے کہ اس میں سے کون سی چیز صحیح ہے، کون سی چیز صحیح نہیں ہے، کن خواہشات کو انجام دینے میں انسان کے لیے کوئی نقصان نہیں ہے اور آخرت کی زندگی میں اس کے لیے کوئی خسارہ نہیں، اور کس حد کو پار کرنے کے بعد خواہشات انسان کے حق میں اس دنیا میں نقصان دہ ہے اور آخرت میں خسارے کا باعث ہے. تو مطلقاً ایسا نہیں کہہ سکتے کہ کسی بھی چیز کی چاہت اسلام میں حرام ہے. نفس کا کسی بھی چیز کو چاہنا، کسی بھی چیز میں دلچسپی رکھنا، رغبت رکھنا مطلقاً حرام ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اسلام نے جو حد مقرر کی ہے چاہت، رغبت اور خواہشات کے تعلق سے، اس حد کو پار کر لینا یہ گناہ ہے اور حرام ہے. خواہشات جو ناجائز اور حرام ہیں، میں ان تمام کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا. خاص طور پر عورتوں کے تعلق سے دنیا کے لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ کوئی انسان اگر عورت کی خواہش رکھے تو وہ بڑا خراب ہے، اور اسی کی وجہ سے لوگ عیاش کا لفظ استعمال کیا کرتے ہیں کہ کسی انسان کو عورت کی چاہت ہے یا خواہش ہے، وہ اپنے طریقے سے اپنی سمجھ کے مطابق حکم لگا دیتے ہیں. کوئی انسان ان کی سمجھ کے اعتبار سے، دنیا کے لوگوں کی سمجھ کے اعتبار سے عورت کی خواہش رکھتے ہوئے بھی
وہ پاک صاف ہے، اس کے اوپر کوئی حکم نہیں لگاتے وہ. اور بعض انسان اس کی سمجھ میں نہیں آتا، اس وجہ سے اس کو عیاش کہنے لگتے ہیں. اسلام کی نظر میں خاص طور پر عورتوں کے تعلق سے خواہشات کی کیا حد بندی ہے، اس کو بتانا آج کے حالات کے تناظر میں بے حد ضروری ہے. ہمارے مسلم معاشرے کے اندر بھی اس سلسلے میں لوگ افراط و تفریط کے شکار ہیں. کوئی جائز خواہش کے اوپر بھی لگام لگا دیتا ہے، یہ کہتے ہوئے یہ تو عیش پرستی ہے، یہ عیاشی ہے. اور کوئی حد کو پار کر لینے والے کے اوپر بھی انگلی نہیں اٹھاتا، اس کو لگتا ہے کہ یہ تو چلتا ہے. مسلم معاشرے میں بھی افراط اور تفریط پائی جاتی ہے. آئیے سب سے پہلے عورت کے سلسلے میں اسلام نے کیا کہا ہے کہ وہ کیسی چیز ہے، احادیث کی روشنی میں ہم اس کو پہلے دیکھ لیتے ہیں. پیارے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما ترکت بعدی فتنہ اضر علی الرجال من النساء، میں نے اپنے بعد دنیا میں سب سے خطرناک فتنہ جو چھوڑ دیا ہے، جو دنیا میں باقی ہے، وہ ہے عورتوں کا فتنہ مردوں کے لیے. پیارے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے حق میں دنیا کا سب سے بڑا فتنہ کس کو قرار دیا بھائی؟ عورت کو قرار دیا، سب سے زیادہ نقصان دہ اور خطرناک. اور اسی طریقے سے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ڈراتے ہوئے کہا اتقوا النساء، عورتوں سے بچے رہو. اتقوا النساء، عورتوں سے بچے رہو، ڈرا کرو، ان سے دوری اختیار کرو. کیوں؟ اس لیے کہ بنو اسرائیل میں سب سے پہلا فتنہ عورت کا فتنہ تھا جو رونما ہوا. اس لیے عورت سے ڈرو اور بچے رہو. اسی طریقے سے اسلام عورت کے سلسلے میں جو ہمارے اور آپ کے سامنے تصویر پیش کرتا ہے وہ یہ ہے کہ عورت اگر گھر سے باہر نکلتی ہے تو در حقیقت وہ شیطان کی صورت بن جاتی ہے. عورت شیطان نہیں. اس حدیث کا مفہوم یہ نہ سمجھا جائے کہ عورت شیطان ہے، بلکہ شیطان اس کو استعمال کرتا ہے اور دوسروں کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے. اس لیے کہا گیا کہ جب وہ نکلتی ہیں تو عورت کی شکل بن جاتی ہے. شیطان عورت کا استعمال کرتا ہے دوسروں کو پھنسانے کے لیے. اس کو اور واضح کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں کہا ہے کہ المرأۃ عورۃ، عورت چھپانے والی چیز ہے، پردہ والی چیز ہے. فَإِذَا خَرَجَتْ، تو جب وہ گھر سے نکلتی ہے استشرفها الشیطان، شیطان اس کے اوپر جھانکنے تاکنے لگتا ہے. یعنی مردوں کے لیے آزمائش کی چیز ہے، فتنہ کی چیز ہے. عورت کے اوپر نگاہ پڑتے ہی مرد آزمائش میں مبتلا ہو جاتا ہے. اب یہ سب تو جنرل بات ہم کہہ رہے تھے. اسلام عورت کی چاہت یا شہوت یا رغبت کو کس طریقے سے دیکھتا ہے کہ ایک انسان مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ ایک عبادت ہے. اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی بندگی کو ثابت کرنے کے لیے چل پڑتا ہے. یعنی گھر سے من بنا کے نکلتا ہے کہ مجھے دنیا کے شیاطین اور دیگر دنیا کی چیزوں سے الگ تھلگ ہو کر کے اپنے رب کے سامنے جانا ہے. اس وقت میں پورے من سے جا رہا ہوں اللہ کے سامنے. گناہ سے بچنے کا پورا من بن جاتا ہے. لیکن مسجد میں آنے کے بعد جب نماز پڑھتا ہے، اگر مسجد میں مردوں کے ساتھ عورتوں کی نماز کا انتظام ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی شکل میں ایک ہی مسجد ایک ہی حال ہے اور
मर्द आगे सब बंदी किए हैं, पीछे औरतों ने सब बंदी की है। तो ऐसी सूरत में क्या बताया जा रहा है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं? खैरु सुफूफिर रिजाल अव्वलुहा। नमाज में लोग खड़े हुए हैं इबादत करने के लिए अल्लाह की, लेकिन वहां पर भी औरत का फितना बरकरार है। मर्दों की बेहतरीन सफ पहली सफ है जो इमाम के पीछे, मर्दों की बेहतरीन सफ पहली सफ है, वशर्रुहा आखिरुहा, और बदतरीन सफ पीछे वाली सफ है जो औरतों से मुत्तसिल है। और ऐसे ही कहा गया कि खैरु सुफूफिन निसाई आखिरुहा, औरतों की बेहतरीन सफ पिछली वाली सफ है, वशर्रुहा अव्वलुहा, और औरतों की पहली सफ जो मर्दों से मुत्तसिल है, करीब में है, वो बुरी सफ है। ये क्यों कहा गया? जितनी दूरी औरतों से है उतना ज्यादा खतरा कम है, खतरा उतना ही कम है। दिल में आपके वसवसे जन्म नहीं लेंगे, और जितनी भी कुर्बत होती जाएगी औरतों की, उस कदर वसवसे दिल में जन्म लेते रहेंगे। तो नमाज की हालत में भी इस्लाम ने औरत के फितने को खत्म नहीं किया, बल्कि उसको बरकरार रखा, बाकी रखा। और यही वजह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त तो दी है औरतों को मस्जिद में आने की, लेकिन उसी हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि औरतों की नमाज मस्जिद से बेहतर उनके घर में है। इजाज़त है, इजाज़त एक अलग चीज़ है, लेकिन औरतों को फितने से महफूज रखने के लिए या मर्दों को औरतों के फितने और आजमाइश में मुब्तला होने से बचाने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि औरतों को मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने की इजाज़त है, लेकिन मस्जिद से ज़्यादा अफजल नमाज उसके घर में है। और उस हदीस में तफसील बयान की गई कि घर में बिल्कुल बाहर उससे ज़्यादा है कि बरामदे में, उससे ज़्यादा बेहतर है कमरे में, उससे ज़्यादा बेहतर है कमरे के कोने में। ये औरत को इस्लाम ने इस नज़र से पेश किया है। हमारे दुश्मन भाई दूसरे माने में ये सब ले लेते हैं और कहते हैं कि इस्लाम ने औरतों की तौहीन की है। नौजुबिल्लाह, इस्लाम ने औरतों की तौहीन नहीं की है, लेकिन फितरी तौर पर जो दिल के हालात हैं मर्द और औरत की, उसकी तस्वीर इस्लाम ने पेश की है। और ये सच्चाई है। आप जुबान से कुछ भी कह दो, लेकिन आप इस्लाम की इन बातों को ठंडे दिल से बैठ करके, कितना बड़ा इस्लाम का दुश्मन क्यों ना हो, वो सोच करके बताए क्या इसमें सदाकत है कि नहीं। तो इस्लाम ने औरतों की तौहीन नहीं की है, बल्कि मर्द और औरत के दिल के हालात की तस्वीर दुनिया के सामने रखी है कि इंसान के अंदर, मर्द की हो या औरत, एक दूसरे की कुर्बत ये फितरी तौर पर वदियत की गई है, रखी गई है, शहवत, रग़बत और चाहत। और इसलिए ये सब चीज़ें आया है दुनिया के सामने, इस्लाम ने उसको खोल के बयान किया। अब मैं इस सिलसिले में 2-3 बातें और जोड़ देता हूँ, किसी को ऐसा ना लगे कि नौजुबिल्लाह इस्लाम की निगाह में औरत की हैसियत कम है या इन अहादीस की रोशनी में औरत की तौहीन की गई। नहीं, बल्कि औरत को इस्लाम ने जब दूसरे माने में बयान किया तो क्या कहा मालूम है आपको? अद्दुनिया मता, दुनिया की सारी चीज़ें फ़ायदा उठाने के लायक चीज़ें हैं। व खैरु मताइ दुनिया, और दुनिया की तमाम चीज़ों में से सबसे बेहतरीन चीज़ अल मरअतु सालिहा, नेक औरत है। औरत का मकाम आप इस नजरिए से देखें कि इस्लाम ने औरत को कहाँ रखा है कि ये दुनिया सबके सब सामान है, लेकिन इस दुनिया के तमाम सामान में सबसे कीमती, सबसे अफजल, सबसे बेहतर सामान क्या है? एक औरत ही है। शर्त यह है कि उसके अंदर सालिहियत हो। सालिह औरत, नेक औरत दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज, सबसे कीमती चीज, सबसे अच्छी चीज। इसी तरीके से औरत कोई काबिल नफरत चीज नहीं है, बल्कि प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया की 3 चीजें सबसे ज्यादा महबूब थी। उनमें से सबसे पहले आपने नाम औरत का लिया। हुब्बिबा इलैया निसा, मुझे महबूब है
तीन चीजें, क्या क्या? अन्निसा, औरत, वत्तीब, खुशबू, वजुअलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, और मेरी आंख की ठंडक नमाज में रखी गई, यानी नमाज भी मुझे महबूब है। तो दुनिया की सबसे महबूब तरीन चीज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तीन चीजें, जिनमें सबसे पहले औरत को रखा गया, और औरत की चाहत या उससे मोहब्बत या उसकी तरफ रग़बत, उसकी शहवत, ये ऐसी चीज नहीं है जिसको हम पूरे तौर पे गलत कह दें। क्यों? इसलिए कि कुरान में अल्लाह ने ऐलान किया है कि ये फितरतन इंसान को महबूब है ये सारी चीजें। ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवात, इंसान को पसंदीदा चीजों की मोहब्बत खूबसूरत बना करके इंसानों के लिए पेश कर दी गई हैं, और वो पसंदीदा चीजें क्या क्या हो सकती हैं? मिनन निसा, औरतें, वल बनीन, बेटे, वल मुकंतरा, वल कनातिरिल मुकंतरत मिनज़ ज़हब वल फ़िज़्ज़ा, सोने चांदी के जमा किए हुए खजाने और ज़ख़ीरे, ये इंसान को पसंद है फितरतन। वल खैलिल मुसव्वमा, निशानदार घोड़े, वल हर्स, खेती, ये सब इंसान को पसंद है। तो ये फितरी तौर पे इंसान को पसंद है। और अब इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद आगे की जो बात आपको बतानी है वो ये है कि क्या औरत को इस्लाम ने जब इस तरीके से पेश किया है, एक इंसान औरतों से दूरी बना ले तो बहुत अच्छा है? नहीं, इस्लाम वो मजहब है जो पूरी हकीकत को जू का तू बयान करता है। चुनांचे इस्लाम कहता है कि औरत के सिलसिले में जो तस्वीर तुम्हारे सामने रखी गई है वो तुम्हारे दिल के हालात के एतबार से रखी गई है, लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि इस्लाम ये कहता है कि औरतों से पूरी तरह दूरी इख्तियार कर लो। पूरी तरह दूरी इख्तियार करना इस्लाम में, रहबानियत इस्लाम में है नहीं कि औरतों से मुकम्मल दूरी इख्तियार कर ले, बिल्कुल, ये इस्लाम में हराम है रहबानियत। यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिले में लोगों को क्या बताया? लोगों को ये बताया कि कोई शख्स अगर मुकम्मल तौर पे दूरी इख्तियार कर ले औरत से तो वो हमारे तरीके से हट गया, वो इस्लाम के तरीके से हट गया। प्यारा रसूल जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खबर मिली, तो आपको खबर मिली कि उस्मान बिन मज़ून ये अपनी बीवी से दूरी इख्तियार कर लिए, बीवी से करीब ही नहीं होते। बीवी ने शिकायत की तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया और कहा कि ये गलत है। बीवी से दूरी इख्तियार करना इस एतबार से ये सोच करके कि खूब नेकियां कमा लो, तुम अल्लाह की इबादतें कर लो, ये सही नहीं है, इसलिए इसको ख़त्म करो। बाद सहाबा कहते हैं कि अगर हज़रत उस्मान बिन मज़ून को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत से दूरी की इजाज़त, दूरी से मना ना किया होता तो हम लोग खसी कर लेते, अपने आप को खसी हो जाते, यानी अपने शहवात के असबाब और ज़राए का खात्मा कर देते ताकि दिल में ख्वाहिश ही जन्म न ले। हम अपने आप को खसी कर लेते, लख्तसैना। किस लिए? बहुत सारे लोगों को लगता है कि इसकी वजह से हम आजमाइश में मुब्तला हो जाते हैं, और हर मर्द महसूस कर सकता है कि वाकई अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे और आपके जिस्म में ये फितरी जो चीज़ जो फितरी तौर पर ख्वाहिश रखी है, जिसकी वजह से आप भी बहुत सारे वक्त अपने आप को आजमाइश में मुब्तला देखते हैं और ऐसा लगता है कि इबादत में कमी आ गई शायद। तो सहाबा का ईमान कितना ऊंचा था, उनको भी यही लगता था कि इसकी वजह से जो ख्वाहिश नफ्स है, औरत की ख्वाहिश है, चाहत है, हमारी इबादत कम हो रही है। अगर अल्लाह ने उनको मना ना किया होता बीवी से दूर रहने का तो हम सब खसी हो जाते, सिर्फ अल्लाह की इबादत करते रहते। एक वाक़या बड़ा मशहूर है, आपने सुना होगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 3 लोग आए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत के बारे में पूछने लगे। उनको बताया गया कि अल्लाह के रसूल ऐसी इबादत करते, वैसी करते, रात में इतनी देर तक इबादत करते, इतनी देर सोते, वगैरह वगैरह। तो लोगों को क्या लगा कि हम लोगों को और ज़्यादा इबादत करनी चाहिए, अल्लाह के रसूल कहाँ और हम कहाँ। अब एक ने क्या कह दिया कि हम जिंदगी भर शादी ही नहीं करेंगे, औरत के झमेले से दूर हो जाएंगे।
اللہ کے रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला कि इन लोगों ने ऐसी वैसी बात कही है, सबको इकट्ठा किया और आपने खुतबा दिया और कहा कि कौन है जो इस तरह की बातें करता है कि हम शादी नहीं करेंगे, हम हमेशा रोज़ा ही रखेंगे। कौन लोग हैं ऐसे लोग? सुन लो, मैं सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला हूँ तुम में से। मुझसे ज़्यादा खशियत तुम्हारे अंदर नहीं है, मुझसे ज़्यादा तकवा तुम्हारे अंदर नहीं है, लेकिन मैं उसके बाद भी शादी भी करता हूँ और रात में सोता भी हूँ और कभी रोज़ा रखता भी हूँ, कभी छोड़ भी देता हूँ। आपने बाउंड्री क्रॉस करने से इसमें ही मना कर दिया कि औरतों से बिल्कुल दूरी इख्तियार करना इस्लाम में जायज़ नहीं है। तो फिर क्या करे भाई? बिल्कुल। अच्छा, दूसरी तरफ इस्लाम ने जो हदबंदी मुकर्रर की है, बिल्कुल बेलगाम भी इस्लाम ने नहीं किया। आज दुनिया बेलगाम हो रही है। आज दुनिया में आज़ादी के नाम पे सबको बेलगाम कर दिया गया है। जो आपके दिल में मन हो वो करिए, आप ख्वाहिशात की इंतहा को पहुंचा दीजिए अपने आप को। ये दुनिया में आज चल रहा है आज़ादी के नाम पे कि भाई हमको आज़ादी है, हमारे जो मन में आए वो करें, इसलिए कोई हदबंदी नहीं है। तो इस्लाम ना तो बिल्कुल बेलगाम आज़ादी की इजाज़त देता है और ना ही इस्लाम बिल्कुल औरतों से दूरी की इजाज़त देता है। इस्लाम बीचों बीच में रखता है। एक तरफ आपको आगाह कर देता है कि औरत का फितना क्या फितना है, और दूसरी तरफ इस्लाम कहता है कि उसके लिए अब क्या करोगे, भाग भी नहीं सकते आप, तो अब क्या करोगे? सबसे पहले इस्लाम ये कहता है कि या माशर शबाब, ऐ जवान की जमात, मन इस्तता मिनकुमुल बात फल्यतज़व्वज, जो भी जवान हो गया है अगर उसके पास ताकत है तो शादी कर ले। तो ये जो फितना है उसके लिए कमजोर हो जाएगा। जायज तरीके से अपने जिस्म की और नफ्स की ख्वाहिश को वो पूरा करे, शादी कर ले। और अगर किसी के पास ताकत नहीं है और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से औरत की ख्वाहिश जिस्म में मौजूद है, तो ऐसी सूरत में वो रोज़ा रखे। वमन लम यस्तति फअलैहि बिस्सौम, तो वो शख्स रोज़ा रखे। रोज़ा रखने से भी नफ्स के ऊपर कंट्रोल होगा। इस्लाम ने नफ्स को पूरी तरह कुचल देने से मना कर दिया है, इसी वजह से खस्सी होने की इजाज़त नहीं है, लेकिन ख्वाहिश को आप दबा सकते हैं, कंट्रोल रख सकते हैं, उसके लिए इलाज बताया है। शादी करो नहीं तो रोज़ा रखो, रोज़ा रखोगे तब भी नफ्स पे कंट्रोल आसान होगा। अब उसके बाद आगे की बातों पे आप ध्यान दें। एक तरफ तो ये बात हुई, दूसरी तरफ कि इस्लाम ने पर्दे का कानून नाफिज किया है। क्योंकि औरत की जो तस्वीर इस्लाम ने बयान की वो आपके सामने है, इसलिए इस्लाम ने पर्दे का कानून नाफिज किया है ताकि नजरों के सामने वो चीज़ ना हो जिससे आपके ख्वाहिशात तेजी के साथ बढ़ें, आपके अंदर लिमिट बहुत आसानी के साथ आपके ख्वाहिशात क्रॉस कर जाए। इसलिए इस्लाम ने पर्दे का कानून नाफिज किया। और पर्दे के सिलसिले में कई स्टेप्स हैं। पहला तो ये कि घर के अंदर भी किस तरीके से औरत रहे। ज़ेबो ज़ीनत, जिस्म के हिस्से बाज ऐसे हैं कि सिवाय शौहर के कोई दूसरा उसके ऊपर नजर नहीं डाल सकता। बाकी जो जिस्म का हिस्सा है जिसमें ज़ेबो ज़ीनत शामिल है, कपड़े हैं, कपड़े के ऊपर में भी खूबसूरती है और ज़ेवरात हैं, इन तमाम चीज़ों के ताल्लुक से इस्लाम ने वजाहत कर दी कि फला फला के सामने इसको जाहिर करने में कोई हरज नहीं है, फला फला के सामने जाहिर करने में कोई हरज नहीं है। एक लिस्ट पूरी इस्लाम ने बता दी। वला युद्दीन ज़ीनतहुन्ना इल्ला लिबुउलतिहिन्ना, शौहर के सामने ज़ेबो ज़ीनत की चीज़ें अगर नज़र आ रही है कोई दिक्कत नहीं। बेटों के सामने या ससुर के सामने या भाई के सामने या भतीजों के सामने या भांजों के सामने या अपनी जैसी औरतों के सामने उसको जाहिर करने में कोई हरज नहीं, या लौंडी या गुलाम के सामने, या घर में वो नौकर चाकर जिनके ख्वाहिशात मर चुके हों, उसकी मुख्तलिफ तशरीह उलमा ने की है। उनमें से एक तशरीह ये भी है कि कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल दुनिया के बारे में कुछ जानते नहीं हैं,
बेवकूफ़ टाइप के लोग समझते हैं उनको किसी चीज़ में कोई दिलचस्पी नहीं होती है। बाज़ लोगों ने कहा कि बूढ़े नौकर चाकर मुराद वगैरह वगैरह, तो इनके सामने जाहिर करने में कोई दिक्कत नहीं है। और इसी तरीके से जो बच्चे, दीगर बच्चे औरतों के पर्दे की चीज़ों से वाकिफ नहीं है, उनको भी मुस्तस्ना रखा गया है कि उनसे भी कोई दिक्कत नहीं रहती है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये तफसील कुरान में अल्लाह ने बयान की है कि इसमें पर्दे के लिए कोई ख़तरा नहीं है। यानी ये जो शहवत वाली बात आती है, इनके अंदर वो बात नहीं आती है, क्योंकि ये वो रिश्ते होते हैं कि जो मोहतरम होते हैं। शौहर के लिए तो कोई पर्दा ही नहीं है। बाकी जिन रिश्तों का तज़किरा किया गया है या जिन लोगों का, तो इनके लिए बाज़ इनमें से मुहर्रमात में से होते हैं कि जिनके साथ निकाह ही हराम होता है, जिनकी एक अलग तफसील इस्लाम ने बयान की है। जो बड़े मोहतरम रिश्ते होते हैं, जिसकी वजह से इंसान के जज्बात कभी भड़कते ही नहीं है, तो इस्लाम ने घर के अंदर ये हदबंदी की कि औरत घर में रहे तो ज़ेबो ज़ीनत का इजहार इनके सामने नहीं होना चाहिए, इनके सामने हो, बाकी दूसरे के सामने नहीं होना चाहिए। और जब घर से बाहर निकलेंगे तब फिर इस्लाम क्या कहता है, मर्द को औरत को दोनों को कहता है कि अपनी निगाह झुका लो। इसलिए कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे, ऐसा तो नहीं है कि औरतें घर में ही हमेशा रहेंगी। घर में रहना उनके लिए बेहतर है कि ज़रूरत पड़ने पर बाहर निकल सकती हैं। तो जब निकलेंगी तो ऐसी सूरत में निगाहें आपस में न टकराएं। मर्द औरत दोनों को कहा गया अपनी निगाहें झुका लीजिए। कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम, ऐसी कुल लिल मुमिनाति यगुद्दूना मिन अब्सारिहिन्ना व यहफज़ना फुरूजहुन्ना, निगाह को झुकाने के लिए कहा गया। औरतों को तलकीन की गई कि अगर ज़रूरत पड़ जाए कभी किसी अजनबी से बात करने की, इंसान को ज़रूरत पड़ सकती है, तो अगर कभी ज़रूरत पड़ गई किसी अजनबी से बात करने की पर्दे की आड़ से, तब भी आवाज़ में लचक न रखें, वो फला तख़ज़अन बिलक़ौल। औरतों से कहा गया कि जब घर से बाहर निकलें तो अपने पूरे जिस्म को ढक करके निकलें। युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना, ये तलकीन की गई। तो ये सब देखिए बचाव का इस्लाम ने रास्ता बताया है कि औरत और मर्द को एक दूसरे से किस हद में रहना है। तो निगाह को भी आप नीची रखिए और जिस्म को भी आप ढक करके रखिए। दायरे में, अदब के दायरे में बात कीजिए, बात में लचक न हो कि किसी के दिल में कुछ पैदा हो सके। ये सब इस्लाम की तरफ से हदबंदियां हैं। इसी सिलसिले में आप देख सकते हैं कि घर में जो बच्चे रहते हैं, औरतों के ताल्लुक से घर के अंदर जो आदाब हैं उनमें से ये है कि किसी के कमरे में छोटे छोटे बच्चों को भी कुछ वक्त में जाने के लिए मना कर दिया गया। वो 3 वक्त हैं, इशा के बाद और फजर से पहले और दोपहर में जब इंसान थोड़ा आराम करता है। इसलिए कि जो बच्चे हैं वो लोग भी, आजकल इसमें बड़ी लापरवाही होती है। आजकल अपने बच्चों से इंसान, बेटा बेटी वगैरह से बड़े बड़े हो जाते हैं, लेकिन उस तरीके से पर्दा नहीं करता जिस तरीके से करना चाहिए। सबको पर्दा करना चाहिए कि ये वक्त इंसान की गफलत का वक्त होता है। किस हाल में कौन है, थोड़ा सा बेपर्दगी का इम्कान रहता है अपने कमरों में। तो ये कहा गया कि अपने घर के ये बच्चे भी जो छोटे अभी बालिग नहीं हुए हैं, वल्लदीना लम यबलुगुल हुलुम, जो बच्चे अभी बुलूगत को नहीं पहुंचे हैं, वो लोग भी इन औकात में बगैर इजाज़त के किसी के कमरे में दाखिल ना हो, यहाँ तक कि बाप माँ के कमरे में भी दाखिल ना हो इन औकात में। और आम वक्त में भी दीगर किसी को बगैर इजाज़त के कमरे में दाखिल नहीं होना चाहिए। इस्लाम ने ये सब बचाव का रास्ता बताया है। और साथ ही साथ आगे के बाहर औरतों को तलकीन की गई, मर्दों को तलकीन की गई। और साथ ही साथ एक बेहतरीन तस्वीर जो इस्लाम ने पेश की है दोनों को कंट्रोल करने का। एक तरफ कि औरतों से दूरी भी इस्लाम में हराम है, दूसरी तरफ मुकम्मल बेलगाम आज़ादी भी इस्लाम में हराम है। इस्लाम एक तरफ आपको खतरात से आगाह करता है और दूसरी तरफ आपको उसको इस्तेमाल करने के जायज़ रास्ते की तलकीन करता है। उसमें एक बड़ी प्यारी हदीस है। वो प्यारी हदीस क्या है?
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بیوی سے ہم بستری کرنا بھی صدقہ ہے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے جنسی یا جسمانی خواہش پوری کریں گے اپنی بیوی سے اور اس کو وہ صدقہ ہے، عبادت ہے۔ صدقہ کا مطلب عبادت۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیوں نہیں، اگر یہی کام تم حرام طریقے سے کرو گے تو گنہگار ہوگے کہ نہیں ہوگے؟ اگر یہی کام تم غلط طریقے سے کرو گے، ناجائز جگہ میں کرو گے، حد سے باہر ہو کر کے، تو اس میں گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو کہاں گناہ ہے؟ تو جب اس میں گناہ ہے، زنا گناہ کا کام ہے، تو بیوی سے جائز طریقے سے ملنا اس کا الٹا عبادت کیوں نہیں ہے؟ تو اسلام نے یہ تصویر بتائی ہے کہ عورت انسان کی ضرورت ہے، اس دنیا کے اعتبار سے بھی اور دین کے اعتبار سے بھی انسان کی ضرورت ہے۔ اگر انسان عورت کو نہ اپنائے تو پھر یہ دنیا چلے گی کیسے؟ عورتوں کا کون خیال رکھے گا؟ اپنا مال اس کے اوپر کون خرچ کرے گا؟ دن رات ان کے لیے محنت کون کرے گا؟ اور جو بچے پیدا ہوں گے ان سے محبت کون کرے گا؟ ان کو کھلائے پلائے گا کون؟ اسی لیے اللہ رب العالمین نے عورت کی چاہت رکھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ نہیں ہے کہ چاہت ہے تو کیسے بھی اس چاہت کو پوری کر لو، نہیں۔ اگر غلط طریقے سے کرو گے تو پھر اللہ سخت ناراض ہوگا اور گنہگار ہو جاؤ گے۔ اور اسی سلسلے میں ایک اور حدیث آپ سن لیں کہ پیارے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی سے ملاپ کرنا چاہے تو دعا پڑھ لے۔ بیوی سے ملاپ کرنا چاہے، ہم بستر ہونا چاہے تو دعا پڑھے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ کہتے ہیں اگر یہ دعا پڑھ لے گا تو اس ملاپ سے اگر بچہ ٹھہرے گا، حمل ٹھہرے گا، تو اس بچے کو شیطان نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔ اب ذرا سا سوچئے کہ اسلام نے کس طریقے سے اس تصویر کو بہترین شکل میں پیش کیا ہے کہ ایک طرف خطرہ اور دوسری طرف جائز دائرے میں اس کا استعمال، کہ انسان اپنی جسمانی رشتہ اپنی بیوی سے قائم کرنا چاہتا ہے۔ ایک طریقے سے دنیا کی نگاہ میں وہ تو جانور بن جاتا ہے، جب دنیا کی نگاہ میں آپ اس کو سوچو گے وہ شہوت میں ایسا ڈوب جاتا ہے، لیکن ایسے وقت میں اسلام کس کی تلقین کر رہا ہے؟ اللہ کو یاد کرو۔ اپنے شہوت اور اپنے جسم کی بھوک مٹانے کے لیے بھی اسلام کیا بولتا ہے کہ جائز طریقے سے بیوی سے ملاپ کرنے سے پہلے اللہ کو یاد کرو، بسم اللہ، اللہ کا نام لو، اللہ، اور اللہ سے دعا بھی مانگو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اس انسان کو اسلام یہ کہنا چاہتا ہے کہ تمہیں اپنے نفس پہ کنٹرول رکھنا بہت ضروری ہے۔ یہ ایک ضرورت ہے تمہاری، لیکن اس کے لیے نفس پہ کنٹرول رکھنا بہت ضروری ہے۔ اندھا نہیں ہو سکتے آپ، بے لگام نہیں ہو سکتے آپ، بلکہ اللہ کو اس حال میں بھی یاد رکھنا ضروری ہے۔ یہ اسلام اس کی تصویر پیش کرتا ہے۔ اور اسی سے جوڑ کر کے کہ شادی کی بات کل کی گئی ہے، آج کل جو ہمارے معاشرے کا، مسلم معاشرے کا بھی حال ہے کہ 25 سال 30 سال 35 سال تک مرد بھی شادی نہیں کر رہا، عورت بھی شادی نہیں کر رہی۔ بتائیے تو کہاں سے انسان کی جسمانی خواہش اور ضرورت وہ کب تک کس طریقے سے اس کو روکے گا؟ اور دنیا نے جس طریقے سے ان بے حیائی کے کاموں کو فروغ دیا ہے اور سب گلی نکڑ پہ لا کر آپ کے ہاتھ میں لا کر کے رکھ دیا ہے، آپ کیسے اپنے آپ کو بچا پاؤ گے؟ کم سے کم جائز راستہ ہو تو آپ اپنے جسم پہ کنٹرول تو رکھ سکو۔ اب 35 سال میں جب شادی ہوگی تو بتائیے انسان اپنے جذبات پہ کب تک کس طریقے سے کنٹرول رکھے گا؟ اور اس فتنے کے دور میں پیارے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد رکھنا چاہیے ہمیشہ، اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ۔ عورتوں سے بھی کہا گیا اور مردوں سے بھی۔ مردوں سے تو کہا گیا کہ جوانوں طاقت ہے تو شادی کر لو۔ جوانی کب آتی ہے؟ 25 سال 30 سال میں، 35 سال میں جوانی آتی ہے۔ جوان ہونے کے بعد ہی یہ حدیث لاگو ہے کہ جوانی آ گئی آپ کے اندر اور طاقت ہے تو پہلی فرصت میں آپ شادی کریے آپ۔ اور عورتوں سے بھی کہا گیا، لڑکیوں سے، کہ ان کے گارجن، ان کے سرپرست شادی میں دیر نہ کریں۔ جب کوئی دیندار رشتہ مل جائے، اب دنیا میں دیندار رشتہ نہیں، دنیا دار رشتے کے لیے بیٹھے رہتے ہیں سب۔ اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ، جب ایسا رشتہ آ جائے جس کے دین سے اور اخلاق سے تم خوش ہو، شادی کر دو۔ فزوجوہ، شادی کر دو۔
अब जब हमने शादी नहीं किया, इस्लाम ने जो इलाज बताया था उस पर अमल नहीं किया, तो जाहिर सी बात है अफरा तफरी फैलना, बेइत्मीनानी और इज़्तिराबी कैफियत का होना और इंसान के जज्बात का बरंगेख्ता होना, उभरना और उसकी वजह से गलत कदम का उठना, ये सब तो होना ही था। आदमी शादी करे तो अब आदमी उसको कहता है अय्याश। इस्लाम ने 4 निकाह की इजाज़त दी है ताकि इंसान औरतों का ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदार बने और साथ साथ अपने जिस्म की ख्वाहिश वो आसानी के साथ उसको पूरा कर सके और फितने से बच सके। लेकिन हमारे मुआशरे में भी अय्याश कहा जाएगा ऐसे शख्स को, और यही सोच जो हमने अपने जहन में बसा रखा है गैर मुस्लिमों को हमारे ऊपर सवालिया निशान खड़ा करने का मौका देता है, और वो हमसे आगे बढ़ करके हमारे रसूल जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी उंगली रख देते हैं। प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ उसको लेकर के जो हमले दुश्मनों की तरफ से किए जाते हैं उसमें हम मुसलमान भी कसूरवार हैं। भी हमारे मुआशरे में जब 35 साल में शादियां होंगी औरतों की 30 साल में, तो गैर मुस्लिम के दिमाग में तो आएगा कि 6 साल की बच्ची से कैसे शादी हो गई। हम जब अपने घर की बच्चियों की शादी और लड़कों की शादी वक्त पर नहीं करेंगे तो गैर मुस्लिम को भी ये मैसेज जाता कि यार मुसलमानों में भी तो नहीं चल रहा है। तो एक तरीके से हम भी उनको मौका देते हैं इस तरीके से कि भाई ये गलत हुआ है शायद, नाउज़ुबिल्लाह। दर हकीकत जो आपकी गलियों के आपके घरों के हालात हैं वो सब आप लोगों ने पर्दा डाल रखा, हम लोगों ने पर्दा डाल रखा है, वरना जो भयानक तस्वीर है घरों की और गली और महल्ले की नाजायज रिश्ते के ताल्लुक से, अल्लाह की कसम अगर रोड पे आ जाए वो सारी चीजें तो कोई मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेगा। ये तस्वीर हमारे घरों की और हमारे गली और महल्लात की हो चुकी है। लेकिन उसके बाद भी जब बात आएगी शादी करने की जायज तरीके से तो हम सीना चौड़ा करके किसी के ऊपर उंगली रख देंगे। तो ये इस्लाम ने जो समझाया है इस तस्वीर को अच्छी तरह समझने की ज़रूरत है कि औरत क्या चीज़ है और मर्द और औरत के आपस में क्या कनेक्शन है और उसको किस दायरे में रखना है। आप पूरे तौर पे ख़त्म भी नहीं कर सकते, इस्लाम में हराम है, तो फिर किस दायरे में उसका इस्तेमाल किया जाए या उसको कंट्रोल किया जाए, उसमें इक़दाम होना ज़रूरी है। सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को हर तरीके से अपने नफ्स पे कंट्रोल करने की तौफीक अता फरमाए, वक्त पर अपने बच्चों की शादी करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे मुआशरे के अंदर ज़िनाकारी आम हो रही है, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुस्लिम मुआशरे को ज़िनाकारी और शराब नोशी से पाक साफ कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपने घरों पे अपने बेटा बेटी और अपने मातहतों के ऊपर पूरा कंट्रोल रखने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन तौफीक इनायत फरमाए। Mm-hmm.